کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کپواڑہ ضلع کے ہندواڑہ علاقے میں 80% بجلی بحال کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے کام شدت سے جاری ہے۔ ان باتوں کا اظہار ایگزیکٹو انجینئر محمد مقبول نے نیوز 18 اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ 12 we have restored at 12 PM we have restored 8 feeders as a now 4 بجے کے جو ہمارے پاس جو ٹوٹل ریسٹوریشن ہے وہ ہمارا 37 فیڈرز ہمارے ریسٹور کیے ہیں، اور ایک فیڈر جو ہمارا آف ہے دیٹ از بینگ پارشلی لکڈ آفٹر بائی دا کپواڑہ ڈویژن اینڈ پارشلی لکڈ بائی دا ہندواڑہ ڈویژن۔ اس پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، دیٹ ول بی ریسٹورڈ ود ان۔ اپنی پارٹی کے صوبائی سیکرٹری الطاف ملک نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اپنے عملے اور مشینری کو تیار رکھیں تاکہ لوگوں کو خاص طور پر بالائی علاقوں میں شدید برفباری کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الطاف نے ایرانی سیب کی درآمد پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایل جی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ اس ایرانین سیب جس کی اب درآمد ہو رہی ہے اس پر فوری طور بین عائد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں کے جو فروٹ گروورز ہیں کشمیر کے وہ پہلے سے ہی خسارے سے دوچار ہے۔ یہاں کے مالکان باغات کی اگر آپ حالت دیکھیں گے تو وہ قسم پرسی کی حالت میں اس وقت ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی، وہ یہ امید کرتے تھے کہ مرکزی سرکار کی طرف سے ایک بڑا مالی پیکیج کا اعلان کیا جائے گا تاکہ یہاں کی جو میوہ صنعت ہے اس کو فروغ ملے۔ اس کو آگے لے جانے کے لیے ایک بڑے مالی پیکیج کی ضرورت تھی، لیکن لداخ میں شدید سردی کی وجہ سے پانی منجمد ہوتا ہے، ایسے میں یہاں مچھلیوں کی پیداوار کرنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ متعلقہ ڈاکٹروں اور اسکارس کے ماہرین نے اب ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کی ہے، اس سے یہاں سرما میں بھی مچھلی کی پیداوار کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ چوچوت شما گاؤں میں محکمہ مچھلی پالن کے اشتراک سے مچھلی گھر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ سخت سردی کے باوجود مچھلی کی ہیچنگ اور نسل بڑھانے پر سائنسدانوں نے روشنی ڈالی۔ درجنوں کسانوں نے پروگرام میں حصہ لیا۔ محمد امین ڈائریکٹر فشریز اور ڈاکٹر محمد اقبال میر بھی موجود رہے۔ کیونکہ جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے سیڈ پروڈکشن کی وہ کافی ڈاؤن ہے، یہاں پہ تو 4-5 ڈگری ٹیمپریچر ہے، اور نائٹ میں تو -26 جاتا ہے ٹیمپریچر، اور واٹر کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا بریڈنگ کے پرپز کے حساب سے وہ کافی ٹف تھا یہاں پہ۔ تو فائنلی میں نے پہلے سکاسٹ میں اس کو سٹینڈرڈائز کیا، جو یہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن ہے اس کلائمیٹک کنڈیشن کے حساب سے تو میں نے اس کو ڈیولپ کر دیا، اور فائنلی اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ لا کے اس فارمر کو دے دیا، اور اسٹیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کی ٹیکنیکل گائیڈ لائنز جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ کو بھی دی، اور ان کو بھی ایک ہیچری اسی پیٹرن پر ڈیولپ کر کے بنا کے دی۔ سر اس میں اگر محنت کرے گا تو پہلے تو یہ مطلب کامیاب نہیں ہوا سر۔ فرسٹ ڈے جو ہے نا اس میں پورا وہ برف جم گیا تھا، اس کے بعد اس میں مطلب وہ ٹیمپریچر کا وہ کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا سر، اچھا ہے سر۔ ہم مارکیٹ میں اس میں ایک تو جو فشر پروڈیوسر آرگنائزیشن ہم بنا سکتے ہیں فارمرز کی ڈیمانڈ کے حساب سے، اگر ایف پی او ہم زیادہ فارمر ہوں گے تو اسی حساب سے ایف پی او بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس کی پروسیسنگ ہے، اس کی مارکیٹنگ ہے، اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پروڈکشن ہو رہا ہے اور کتنے فارمر اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اسی کے حساب سے پھر ہم اس کا ایف پی او فارمیشن کریں گے۔ بی جے پی نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس پر الزام لگایا کہ ان دونوں جماعتوں نے درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے خلاف سازشیں رچی ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان ابھیجیت جسروٹیا نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں نے 1997 میں آٹونومی رپورٹ بناتے وقت ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں دفعہ 332، 337 اور 339 ہٹائے جانے کی سفارش کی گئی تھی۔ جسروٹیا نے کہا کہ ان دفعات کے تحت ایس سی اور ایس ٹی سماج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ریزرویشن مل سکتی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جماعتیں دفعہ 370 کی آڑ میں سماج کے پچھڑے طبقوں کے مفادات کو زخم پہنچاتی رہیں۔ اگست 2019 کے فیصلے کے بعد اب ان طبقوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ تھی اسٹیٹ آٹونومی کمیٹی کی، یہ جی اے ڈی آرڈر ہے 1164 29/11/1996 کا۔ اس کے اندر ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ کمیٹی فریم کی جاتی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ۔ اس کمیٹی کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ کانسپیریسی ایس سی اور ایس ٹی کے اگینسٹ کی جاتی ہے، اور کیا بات کی جاتی ہے کہ آرٹیکل 332، 337 اور 339 کو اومٹ کیا جائے، ختم کر دیا جائے، جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ آرٹیکل واز پرٹیننگ ٹو ریزرویشن فار ایس سی اینڈ ایس ٹی،
और ये 1997 से ये कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ की गई। दुख की बात यह है डॉक्टर करण सिंह इसके चेयरमैन रहे और फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस कमेटी को बनाया। मिलकर इन लोगों ने जो SC और ST कम्युनिटी के साथ एक सबसे बड़ी नाइंसाफी की है वो आप सबके उजागर है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप तो इन लोगों का वोट बैंक लेते रहे, फिर इनके साथ ही इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचाया इन्होंने। और एक और चीज जो हम इसमें कह देना चाहते हैं वो ये जरूरी है कि ये ऐतिहासिक दिन अगर 5 अगस्त 2019 का ना आता तो आज तक ये दोनों कम्युनिटीज हमेशा सफर करती रही। जम्मू कश्मीर की मईशत में बागबानी शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ऐसे में हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नर्सरियों का रोल काफी अहम है। इससे रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। पेश है जहूर रिजवी की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम हार्टिकल्चर नर्सरियों का सरचश्मा है। महकमा हार्टिकल्चर जोन कैमू से मुल्क की नॉर्थ ईस्ट रियासतों के लिए पौधे सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ की जरखेज मिट्टी ने बागबानी शोबे को एक सिमत बख्शी है। इस जोन में 330 नर्सरियां मौजूद हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पेड़ पौधे यूटी और दीगर रियासतों को रवाना किए जाते हैं। इससे सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हो रही है। इस शोबे से मुंसलिक अफराद की माली हालत भी मुस्तहकम हो रही है। नर्सरी मालिकान ने महकमा हार्टिकल्चर और मरकजी सरकार की मुआवनत वाली स्कीमों का शुक्रिया अदा किया। इसमें से मैं कम से कम भी 60-70 हज़ार पौधे हर साल तैयार करता हूँ और ये माल हमारा आउट ऑफ स्टेट भी जाता है और यहाँ का जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या रूरल डेवलपमेंट है उसको भी हम सप्लाई करते हैं। करीब 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख भी हर साल जाते रहते हैं। वेराइटीज़ ऑल वेराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं जी। जैसे ये अपना हाइडेनिस्टी प्लांट्स, गाला मस्त, जीरो माइन, अर्ली रेड वन। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया हमारी नर्सरी यहाँ पे, तो मैंने इसको हाइडेनिस्टी में लगाया। यहाँ पे HD का तो रूट स्टॉक यहाँ पे लगी है कम से कम 15,000 लगी है बडिंग के लिए और लेयरिंग के लिए हमने लगाया 2,000। तो हम शुक्रगुजार है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, यहाँ गाइडेंस करने के लिए आते हैं। इसमें तो बहुत सारा अच्छा फ़ायदा है, लेकिन मेहनत इसमें लगती है। मेहनत कोई इंसान करे तो नर्सरी सबसे बेटर है। महकमा हार्टिकल्चर जिला कुलगाम में बागबानी शोबे में इनकलाबी इक़दामात उठा रहा है। वादी की 80% नर्सरियाँ जिला कुलगाम में ही कायम है। महकमा सब्सिडी के तहत नर्सरियों को कायम करने पर जोर दे रहा है। सालाना कम से कम 700 फैमिली एसोसिएटेड है और यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ नर्सरियों को हम स्पॉन्सर करते हैं सो दैट कि दे एक्ट एज ए मॉडल नर्सरीज फॉर द पीपल और वो लोग उनको देख के और अच्छे से अपने काम को अच्छा कर सकें। तो देखा गया है कि कश्मीर की मिट्टी के बराबर बाहर उतनी डेवलपमेंट बाकी पौधों में नहीं आती। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हमारा मोटिव होता है क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस करना। वो क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस होगा इन्हीं नर्सरीज में। तो यहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि इसमें काफी नौजवान आ गए हैं, लर्नड पर्सन हो गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। हम देखते हैं इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से बनाया है, वाकई में क्वालिटी मटेरियल है। और इसके अलावा एक्रीडिटेशन भी होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से भी टीम आती है। बागबानी शोबे को फरोग देने में ऐसी नर्सरियां काफी अहम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट। पुंछ के कस्बे में रहने वाले 27 साल मोहम्मद सफ़ीर गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। सफ़ीर के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। सफ़ीर के वालिद अपने बेटे के इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं। अब सफ़ीर की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बड़ी रकम दरकार है। सफ़ीर के वालिद ने अहल खैर असहाब से उनके बेटे के इलाज में माली ताउन करने की अपील की है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे बैंक अकाउंट पर रुकमा जमा कराने की अपील की गई है। मेरा लड़का है ये मोहम्मद सफ़ीर, बीमार है। 1 महीना मैंने पुंछ हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद मैंने जम्मू रेफर किया तो बख्शी नगर 1 महीना रहा। उसके बाद सुपर फास्ट में मैंने 20 दिन रहा। लिहाजा ये इसकी किडनी दोनों ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं रहा। मैं तमाम भाइयों के गुजारिश करता हूँ कि इसकी मदद करें, तो मैं इसकी किडनी का कोई कोशिश करूँ कि किडनी इसकी पैस जाए। जवान 20-22 साल इसकी उम्र है, इसकी दोनों गुर्दे फेल हैं। मैं
آپ کے माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं सब लोगों से कि इस शख्स की जितनी जिससे हो सके इसकी मदद करें और जहां तक हो सके ताकि इसका ये इलाज अपने बेटे का करा सकेगा। जिला रामबन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7 दिनों से जारी है। तनख्वाह वागजार करने, मुस्तकिली और दीगर मुतालबात को लेकर हड़ताल की गई है। इस दौरान रामबन के मुल्हका इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गुज़श्ता रोज एहतजाजी मुलाजमीन को डायरेक्टर दफ्तर से नोटिस मिलने के बाद अवाम और सियासी लीडरान ने मुलाजमीन की मांगों को जायज करार देते हुए इनको पूरा करने की मांग की है। हमें क्या मिला? कैजुअल लेबर 225 पर सफर कर रहे हैं और उस 225 को बढ़ाने के बदले, उनकी मांगे पूरी करने के बदले उनको नोट से भेजते हैं कि भाई ये तुम्हारा इनलीगल है, प्रोटेस्ट है कि तुम अपना हक मांगते हो। किस कानून में लिखा है कि हक मांगना नाजायज है? हक मांगना नाजायज है। हम हक मांगते हैं। हम बार बार यही कहते हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब भेजें, चाहे हमें गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। हम रामबन की हर पार्टी, हर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, युवा हो, सिविल सोसाइटी हो, एनजीओ, सब इनके साथ खड़े हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वो सही है और हम सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनकी मांगों का इजाला कीजिए। अनंतनाग के सरहमदान के बाशिंदों ने इलाके को डी नोटिफाई करके यहां पंचायती राज इदारों के क़याम का मुतालबा किया है। लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर सरहमदान में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कई बरसों से वो इलाके को पंचायती ज़ुमरे में लाने की मांग कर रहे हैं, ताहम चंद बाअसर अफराद की वजह से उनकी मांग की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। इलाका तामीर तरक्की और रोजगार के मामले में काफ़ी पसमानदा है। बाद में इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी ने लोगों से मुलाकात की, उनके मुतालबात को सरकार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। लोगों ने कमेटी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। आज से 9 साल पहले इसके साथ मुनहसिल 2-4 गाँव थे, अकड़, मनिगाम, मुलुस, आरीगोला, उनको डिनोटिफाई करके हमारे ऊपर ये थोप दिया गया। हम बिल्कुल इसीलिए सरापा एहतजाज है कि हमें इससे बेनिफिट हासिल नहीं होता है क्योंकि हमारी जितनी भी मतलब यहाँ के लोग हैं, हम बिल्कुल गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। सारा दारमदार हमारा किसान जमींदारी पर है और हम इनके टैक्स जो ये टैक्स लागू करते हैं, हम ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं। वुनिक ताम आए वारा कमेटी और यमो जन ये फैसले नियाव अतुक बोड़ बार आवाम 99% यसान टाउन काड़न, मगर सियासी क्या असुर रसूख तो क्या बदअनसर क्या लुक यसान पत ये टाउन थाउन यन यमन अमिक फायदे यमन अत मज मुलाजिम बचे। महकमा सेहत ने जिला अस्पताल उधमपुर में RT-PCR टेस्ट की सहूलत मुहैया की है। इससे पहले अस्पताल इंतजामिया को फौजी अस्पताल उधमपुर या जम्मू को जांच के नमूने भेजने पड़ते थे और रिपोर्ट में आने में 3 से 4 दिन का वक्त लगता था। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विजय रैना का कहना है कि RT-PCR लैब से कोविड मुतासरीन की जल्द तशखीस होगी और इलाज में मदद मिलेगी। पहले क्या होता था, हम लोग टेस्टिंग यहाँ पर सैंपल लेते थे टेस्टिंग के लिए, यहाँ तक कमांड हॉस्पिटल भेजते थे, नहीं तो GMC जम्मू, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता था, 3 दिन 4 दिन का, क्योंकि लोड काफ़ी होता था। तो तब तक लोग जो पॉजिटिव होते थे, जो निकलते थे, वो संपर्क और लोगों के संपर्क में आते थे तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती थी। तो इससे तो हम पहले ही जब हमें फर्स्ट इंस्टेंस में ही हम उनको आइसोलेट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, तो इससे तो जितने भी हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट में बसंतगढ़ है, पंचारी है, हमारे चिनानी है, जो भी हार्ड एरियाज हैं जहाँ से लोग हमारे सैंपल्स आएंगे, हम उनको अर्ली डायग्नोसिस करके हम बता सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी और जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने इंडस्ट्रियल स्टेट में काम कर रहे मजदूरों और उसके इर्द गिर्द रिहायश पजीर आम लोगों की तिब्बी जांच की। इनमें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। शोबे के डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के सदर हाजी मुजफ्फर अहमद की निगरानी में कैंप का एहतमाम किया गया। I hope this medical camp which we are going to hold today at Lasipura, Pulwama will help in improving the health condition of the workforce working in these various units at Lasipura Industrial Growth Center. डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर यूटी ने बारामूला में ब्रेल डे मनाया। इस तकरीब का इनकाद चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में समग्र शिक्षा के इश्तराक से किया था।
बसारत से महरूम बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला ने इस मौके पर कहा कि ये तकरीब बसारत से महरूम बच्चों की सहूलत के लिए मनाई गई ताकि वो खुद को दीगर आम बच्चों से कमतर महसूस न करें। इनकी इस मेहनत से वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।